welcome to The Print. This is Triya Gulati, and my guest today needs no introduction. For the last couple of days, he's all over media headlines, he's all over the internet. He's none other but Paras Dogra, who led Jammu Kashmir to its first Ranji Trophy title. Paras, welcome to The Print and Thank you. big congratulations. Has it sunk in yet? Yeah, it has now, well, but still, I've been watching all the videos and the pictures and really admiring it and just enjoying the moment. Hmm. And we saw that there was a victory parade held in Jammu. Just to be part with, like, with with your entire squad, people chanting your names, going hip hip hooray, Jammu Kashmir team. Talk to me about that victory lap. It was good experience. Jammu Kashmir people, I think they really enjoyed it as well. We really enjoyed it as well, and it's a very proud moment for everyone. So it was, a get together of everyone, all the administration and all the people. So it was a good fun. Hmm. And what do you have to say about this whole campaign of Jammu Kashmir? How do you sum it up? It was good. It was good to meet CM, and then we went for to meet judge as well, and then we did the parade and all those things. Got a bit tired, but was fun to meet everyone, and Hmm. everyone was admiring it. It was praising, and everyone was happy. Mhm. So it always feel good. And just like last time, you missed by one run for to qualify, and now went ahead and lifted the trophy. Uh, a lot of people are saying that, oh, it's a fluke. Oh, it's an all. Matlab, if Jammu Kashmir has won it, so you have to imagine that how bad the Ranji Trophy talent is. What do you have to say to all of those critics? No, I won't say anything. It's when you lose, the people are there to say all these things as well. But when we lost just by one run in quarterfinals, I had that belief that everyone had that belief in the whole team that we can win this tournament. Mhm. And with God grace and everything, we did really well and we won the championship. So very happy for it. So no bittersweet feeling for those who are putting the victory down No, by no, no, calling it no, a no, fluke. no. It's their choice. It's Hmm. their opinion. So you can't change anyone's opinion. Hmm. But as a team, when we lost by one run, I had the big belief that this side can win the Ranji Trophy, and it happened. And do you think next year also are you gonna retain the trophy? Sure, definitely. I think the boys are very pumped up. Hmm. They are. I think it's that this group has been really good, and they are young as well. Hmm. They are hungry as well, and now they have tasted the championship thing. Hmm. So now I think they will prepare more and come back harder. Hmm. Your statement just reminded me of Kapil Dev's dialogue, which was shown in the film as well. You taste success once, the Yeah, tongue wants more. So correct. I hope that turns out true for Jammu Kashmir. Paras, this win has made a lot of people talk about Jammu Kashmir's journey. There have been so many cricketers who deserve the credit to keep the sport alive. In Jammu Kashmir, where how do you see this whole journey, like where do you think the change started to come in Jammu Kashmir in terms of cricket? To be honest, I've been always playing against Jammu Kashmir. It's like from last 2 years I just joined them, but after when Mithun Bhai came in and when Jay Bhai, he saw the facilities and all these things and he changed and then he gave the command to Mithun Bhai, Anil Brigadier sir. I think that was the major thing, and so the facilities started growing, the players started getting trust, like okay, they won't be change so much change in the team. So I think that was a really big thing. So now I think that has changed all the system or scenarios, whatever it was. So now I think it's you can see the result where the team is. Apart from JKCA and the whole administration, there are two people who deserve due credit.
One is Mr. Bishan Singh Bedi, and second is Irfan Pathan. Now I know that you joined Jammu Kashmir 2.5 years back, and before that, I mean, at that point, both of them were not there. But Hmm. still, with the conversations players have, the conversations that happens in the administration, how do you see their contribution in Jammu Kashmir cricket? Definitely, Bedi sir, I have also trained under him. So he was like, very strict in a very nice guy, but Hmm. very strict while playing cricket, Hmm. or he used to make us run a lot. Hmm. So I think, he saw the talent there, and from there only he gave the belief that you can do that. Hmm. And I have also heard from the senior players who have been playing, they have said like, the Bedi sir have changed the whole, the thinking Hmm. of the players that they can win. Hmm. And next, I think Irfan came, and he uh, got involved, and he found some talented guys in the team as well. So I Hmm. think it's a contribution of everyone. Hmm. So I think you can see, after that, to get together all these things, Hmm. I think it happened from 21, Hmm. 22, and Mithun Bhai took over. So yeah, you can give credit to anyone. Right. And if I talk about performance of the players, would you have to talk about, like, for with respect to Akib, with respect to Shubham, Samad, how do you see their performances? Excellent. They have been very super. Akib has been our backbone. He has been superb this season. Samad has been excellent. You can see he has scored at, I think, more than 700 runs. But everyone has chipped in. You can see, like, the players got injured, new players came in, and they have started scoring 100. Mm. So I think it's a great bunch of guys. And if somewhere fast bowlers are not doing, our spinners came in as well. Mustaq did well, Yeah. Vansas did well, and Sahil Lothra did well, and with the ball as well, with the bat as With well. the bat as well, yeah. And even our fast bowler Yudhvir, Mm. Sunil, Akib, and they has been exceptionally so good that that is the I think that is the only thing you need in a team to win the championship, and it just worked, and very happy for it. The finals going up against Karnataka, who I call them serial winners. Uh, and because also that half of the team plays for India, Mm. and what conversation did you have with your squad? Was there any intimidation? Oh, like, you're going up against people like KL Rahul, Mayank Mm. Agarwal. What was the conversation like in the dressing room before the match and during those 5 days? Well, nothing, to be honest. Okay, because last थोड़ा सा year, तो ऐसा लगा होगा ना कि मतलब कर्नाटका के अगेंस्ट जा रहे हैं फाइनल्स, क्या हमारा स्कोप है जीतने का? नहीं, इफ यू सी लास्ट ईयर, जैसे बॉम्बे हम्म. को हमने बॉम्बे में हराया, तो ऑलमोस्ट 9 या 10 प्लेयर तो दे वर प्लेइंग इंटरनेशनल. सो फ्रॉम देयर ओनली वी हैड दैट बिलीव कि यार नहीं, हम किसी को भी हरा सकते हैं. हम्म. और उसके बाद इफ यू विल सी कि यार हमने दिल्ली को दिल्ली में हराया, और फिर उसको एमपी को एमपी में हराया, बंगाल को बंगाल में हराया, एंड दे वर आल्सो हैविंग 4-5 इंटरनेशनल प्लेयर्स. सो बिफोर गोइंग टू फाइनल, वी ऑलरेडी हैड दैट, हम्म. कि यार वी हैव डन इट बिफोर. So we have been always playing a simple cricket, session by session, and I think to do the simple things is the most difficult thing consistently. So that's what our team has been doing. Ki yaar, good catching, good fielding, and good bowling, not giving runs easily. So I think everything thing clicked. और जब ये मैच शुरू हुआ तो everyone was very confident, calm also, कि यार हमने अपना काम करना है. Let's see what's written. और मुझे लगता है डे वन पे एक तो टॉस जब आपने जीता और बैटिंग चूज करी, आई थिंक थोड़ा सा बैटल तो आप वहां जीत गए थे. एंड उसके बाद आई थिंक डे वन पे वुड यू अग्री दैट कर्नाटका की बॉलिंग वाज नॉट ऑन पॉइंट? लाइन लेंथ थोड़ा मिसिंग था उनकी बॉलिंग अटैक में, इवन फॉर समबडी लाइक प्रसिद्ध कृष्णा. अ, पर हमारे लिए अच्छा ही हुआ जो भी हुआ. हाँ. थोड़ा था. Because then you could see the difference when Jammu Kashmir came to bowl, when Akib was bowling.
he did, even if when the batter was not playing the ball, he did not like shift from his line and Yeah, length. He invited the batter because he's like, till when are you going to avoid my balls? correct. At some point you're going to hit it, right? Hmm. And that's where he picked the wickets. So do Hmm. you think that was missing in Karnataka's bowling attack? हाँ, definitely means एक टाइम के बाद they are also started to take wickets. Hmm. और जब विकेट लेने जाते हो तो you will definitely throw loose balls. Hmm. तो वो I think our batsmen they did a really good बैटिंग और वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब करी Hmm. कि लूज बॉल्स को अच्छा डिस्पैच करा. आई थिंक दे रश फॉर द विकेट्स. Hmm. सो वो हमारे बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा हुआ. और जब फर्स्ट डे पे वी वर लाइक 280 फॉर 2, तो इट वाज अ वेरी गुड पोजीशन. एंड हमारा क्या हो रहा था, नीचे वाले बैट्समैन ज़्यादा रन बना रहे थे तो एवरीवन वाज लिटिल काम, बट स्टिल वी हैव टू पुट गुड स्कोर ऑन द बोर्ड. तो चल ही रहा था दिमाग में. बट Right. हाँ, थोड़ा सा विविड रहे वो. दे कुड हैव बीन मोर कंसिस्टेंट. और अगर आप आकिब का देखोगे, सुनील का देखोगे या यूडी का देखोगे तो everyone has been like very consistent. Yeah. They don't give loose ball easily. That's what we have been talking all the time कि यार अगर आपने 4-5 ओवर का स्पेल डालना है तो ट्राई टू कि मेक श्योर कि डोंट गिव लूज बॉल्स मोर. आप अपना डालो अच्छे लाइन लेंथ पे, चलो लेट्स द अदर बॉलर केम इन. तो हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही है कि यार अच्छी बॉल अच्छे एरियाज में डालेंगे, लेट्स सी व्हाट्स रिटन. राइट. वर्ल्ड कप के बीच में हुआ था रणजी ट्रॉफी, और एक इंसिडेंट ने जो आई थिंक डे 2 पे हुआ था, इट पुट द फाइनल एट द सेंटर ऑफ कॉन्वर्सेशन. वर्ल्ड कप के बारे में कोई बात करना शायद 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी. वाज योर हेडबट मोमेंट? Tell me. I remember I asked you on that day as well, and you very like conveniently deflected from that question. Tell me today, now it has happened, you have won the trophy, things are in the past, I'm sure players have sorted out. What exactly happened? Who said what? And what, why did you end up in the, how did you end up in that situation? नहीं, पूरी कन्वर्सेशन तो नहीं बताऊंगा, बट ये था कि हीटेड मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर. एंड थोड़ा बहुत तो चलता ही है, स्लेजिंग व्लेजिंग तो चलती रहती है, इट डजंट मैटर. बट आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग व्हाइल बैटिंग एट दैट टाइम. थोड़ा Right. बाउंसर ऑन था, आई वाज नॉट एबल टू प्ले वेल. तो वही थोड़ा गरम गरम में ही वाज स्लेजिंग, सो आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग. तो एक हीटेड मूवमेंट हुआ और उसमें थोड़ी सी बातचीत हो गई. तो बाद में देखा वीडियो में इतना हो गया, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं उसको सिर्फ बोलूंगा ही. अब ये नहीं पता था कि हेडबट हो गया, टू बी ऑनेस्ट. तो वो हो गया और उसके बाद एवरीथिंग वाज काम एंड कूल. ऐसा कुछ उसको बड़ी नहीं बात, वो दिस वाज ओके. बड़ी नहीं बात. ठीक है. पारस, अगर मैं आपके बैटिंग की बात करूं तो यू हैव स्कोर्ड हेवीली इन रेड बॉल क्रिकेट, राइट? सो व्हाट्स योर मेथड टू लीव द बॉल इफेक्टिवली आउटसाइड ऑफ? या फिर क्योंकि उस मैच में भी वो शॉर्ट बॉल से आपको काफी ट्रबल करने की कोशिश कर रहे थे, जो मैंने आपसे पूछा भी था कि कुछ ज्यादा ही बाउंसर डाल रहे थे आपको. तो क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी? मेरी जस्ट ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल. वही कि यार टाइम स्पेंड करना है अंदर, वेट फॉर द लूज बॉल्स. और जो बाउंसर्स वगैरह था, आई वाज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम. फिर अगले दिन मैंने जाके काम करा, तो दिशान याग्निक के साथ सुबह जाके काम करा एंड आई वर्कड ऑन इट. थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था, सो आफ्टर दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल. तो हाँ, वो तो रहता ही है, ऑस्ट्रम के बाहर की बॉल तो छोड़नी पड़ती है. तो हाँ, वेट फॉर द लूज बॉल. सो आई ऑलवेज कीप द थिंग सिंपल. सबका अपना अपना तरीका होता है रन बनाने का. तो मेरा भी यही तरीका होता है कि यार टाइम स्पेंड करूंगा तो ऑटोमेटिकली आई कैन स्कोर बिग रन. So I've also seen that you slow down your innings as well. So is that a conscious thing to tire the bowlers? Ki let them give bouncers, and once they'll also get tired, and then you will smash it for the boundary. नहीं, क्या होता है कि एक स्पेल आता है व्हेन द बॉलर्स स्टार्टेड बॉलिंग रियली वेल. तो उस टाइम पर मेरा यही रहता है कि यार बस ये स्पेल निकाल दो, एटलीस्ट 4-5 ओवर्स का, व्हाटएवर स्पेल इज बॉलिंग. सो नेक्स्ट बॉलर आएगा तो यू विल बी ऑन अ अपर साइड बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेट इन. तो मेरे को लगता है कि वो एक स्ट्रेटेजी आप समझ लो कि कोई अच्छा बॉल डाल रहा है तो रिस्पेक्ट, और वो टाइम जल्दी निकल जाए, मतलब कि वो टाइम आप खेल जाओ, और उसके बाद जब नया बॉलर आए तो लूज बॉल्स आएंगी तो यू कैन स्कोर रन्स. तो स्ट्रेटेजी यही रहती है कि अंदर ही रहूं जितना भी रहना है. कोई अच्छा बॉल डाल रहा है तो रिस्पेक्टेड एज वेल, पर लूज बॉल को डिस्पैच करना भी अच्छा रहता है.
आई थिंक जम्मू कश्मीर का ये पूरा लास्ट ईयर का भी और इस साल का तो वेल इट्स सोने पे सुहागा हो गया। दिस कैंपेन जहाँ तक मतलब एवरी प्लेयर कंट्रीब्यूटेड एंड दे डिड द रोल वेल, बट आई थिंक आप पे एक एडिशनल रोल था दैट वाज ऑफ अ कैप्टन एंड आई थिंक you know there were certain decisions throughout the campaign that you made at the right time which ended up in in favor of Jammu Kashmir. But as a captain, what is that one decision you think you took in the final that paid off well? एक नहीं, कैप्टेंसी डिसीजन जो आपने लिया हो। ऐसा तो कुछ खास नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा तो था नहीं। एक तो अच्छे प्लेयरों के साथ अगर आप कैप्टेंसी कर रहे हो तो आपकी जॉब इजी हो जाती है हम्म। कि ज़्यादा आपको, क्योंकि योर बॉलर्स आर गुड, फील्डर्स आर गुड, तो वो तो इजी हो जाती है। बट इन बिटवीन क्या है कि वी स्टार्ट टॉकिंग। मैं मिड ऑफ पे आई थिंक पूरा अपना करियर स्लिप में खड़ा हुआ हूँ। तो मिड ऑफ पे आई स्टार्टेड स्टैंडिंग फ्रॉम लास्ट 2 years कि जस्ट टू टॉक विद द बॉलर्स कि यार हम क्या कर सकते हैं, ये बैट्समैन क्या कर रहा है, तो इसको हम किधर बॉल डाल सकते हैं या क्या फील्ड ले सकते हैं। तो आई थिंक दैट हैज़ बिन वर्कड फॉर मी एंड फॉर द टीम एज वेल कि हम फिर वो स्ट्रेटेजी बना लेते थे कि यार ये यहाँ ज़्यादा अच्छा खेल रहा है तो हम ये फील्ड लेके ना इसका ये रन भी रोक सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं जब बॉलरों से बात कर रहा था ना, हम्म। वो बहुत अच्छा किया मैंने, जो मेरे को लगा कि हाँ यार, एंड इट वर्कड एंड वी हैव बीन टॉकिंग लाइक वो भी बात कर रहे थे, मैं भी बात कर रहा था, तो वी स्टार्ट टॉकिंग एंड वी स्टार्ट डिस्कसिंग एंड इट वर्कड फॉर द टीम। तो मज़ा आ गया। आपकी रणजी विक्ट्री के बाद किसी मतलब आपको जो मैसेजेस आई एम श्योर बहुत हर जगह से आए होंगे, फैमिली से, फ्रेंड्स से, इंडियन क्रिकेट सर्किट से किसी ने रीच आउट करके आपको कंग्रेचुलेट किया? नहीं, बहुत हैं, सब जब सबके साथ ही खेला हूँ मैं, बहुत हम्म। सीनियर्स के साथ भी खेला हूँ, बहुत जूनियर्स के साथ भी खेला हूँ, तो सबसे मैसेज आए। हम्म। और अब पर्टिकुलरली नाम लूँगा तो फिर लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ बट नाम ले लीजिए, एवरीवन। कुछ कुछ नाम तो ले लीजिए। नहीं, जैसे शिखर हैज़ बीन गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम्म। यूज़ी हो गया, एंड देन विक्रम राठौर, वसीम जाफर, so everyone has हम्म। has been congratulation, हम्म। has been तो अच्छा लगा, सबसे बातचीत होती रहती है। हम्म। It was good. Paris, if I also talk about your journey here, you know, you have been around for 24 years approximately, right? Hmm. More or less. You got a chance for India in India A, you got a chance in IPL, but you know, it did not end up becoming, you know, like substantiate run in both India A and for IPL. What kept you going all this while when the spotlight has come on you now, and now people are looking at your journey and then you know giving it that poetic touch that oh, this guy has been around for so long. One thing was missing, which was the Ranji title, right? But now it has become poetic. What kept you going for 24 years? Uh, I enjoyed it, to be honest. मेरे को मज़ा आता है खेलने में। तो वो सारा स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस से, खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज करना, नेट सेशंस पे जाना। तो आई थिंक आई केप्ट इट वेरी सिंपल। तो आई थिंक यही था कि लगे रहो, यू नेवर नो, एंड अपॉर्चुनिटीज आती रही। Hmm. तो हिमाचल से खेले, फिर पौंडी से खेले, फिर मिथुन भाई का फ़ोन आया, तो आई सेड लाइक ओके यस, गॉड मस्ट हैव रिटन समथिंग गुड, उसने Hmm. लिखा है तो फिर। तो आई ऑल्सो केप्ट गोइंग, देयर वाज कोई दूसरा थॉट ही नहीं आया कभी कुछ और पर करने का। कभी वो रिग्रेट नहीं हुआ कि आईपीएल में उतना नहीं खेल पाए या इंडिया के लिए उतना नहीं खेल पाए? नहीं, ऑब्वियसली हम्म। रिग्रेट तो होगा, हु डोंट वांट टू प्ले फॉर कंट्री या। यार, वो तो दैट इज ऑलवेज द हम्म। एवरीवनस ड्रीम। बट सबकी अपनी अपनी जर्नी है, मैं वही बिलीव रखता हूँ। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया किसी और से, मेरी अपनी जर्नी है। और आई ऑलवेज हैव द ग्रेटिट्यूड कि यार यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ऊपर वाले की वजह से पहुँचा हूँ, और पता नहीं कितने लोग होंगे जो मेरी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते होंगे। तो आई ऑलवेज हैव अ ग्रेटिट्यूड कि वेयर आई एम राइट नाउ, यस डेफिनेटली आई ट्राई टू प्ले फॉर द कंट्री। तो नहीं तो ठीक है, बट लाइफ इज गुड, आई हैव दैट ग्रेटिट्यूड, सो आई एम हैप्पी। No, and I think you're also very modest. I remember the first conversation I had with you that after the interview I said that you know you don't want to take credit at all. तो ये कहाँ से आपके फादर से आया है या फिर ये आपका खुद खुद आपने इनबिल्ट है ये दिस नहीं, मॉडेस्टी?
आई इसमें क्या बताऊँ, ये तो नहीं, अब इतने सालों से खेलता आया तो आई ऑलवेज ट्राइड क्या टीम को अच्छी पोजीशन में बनाऊँ, जिताऊँ। बट इतना अच्छा ग्रुप लड़कों का इकट्ठा हुआ तो आई बिलीव कि ठीक है, आई हैव कंट्रीब्यूटेड और आई हैव हेल्प्ड और व्हाटएवर, बट इट वाज नॉट पॉसिबल विद कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीवन। हम्म, तो आई कांट टेक द क्रेडिट, ये तो मेरी ड्यूटी है टू मेक रन्स, एंड एज अ कैप्टन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्रेडिट क्या लूँगा, बट ये है कि मज़ा आ रहा था और मज़ा आया भी है। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी क्रेडिबिलिटी आई शुड टेक। credit you should take. Well, I think that's what makes Paras Dogra Paras Dogra. But पता है बहुत लोग आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, but बहुत कम लोगों को पता है कि how cricket happened in your life and what role your father played. और मतलब ये भी एक काफी पोएटिक ही है कि आपने उनकी डेथ एनिवर्सरी पे यू लिफ्टेड द रणजी ट्रॉफी टाइटल। थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे थे और उनका कितना बड़ा रोल रहा आपकी ज़िंदगी में क्रिकेट को लाने का और फिर उस फ़ील्ड में आपको पुश करने का? नहीं, बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया था। ही आल्सो प्लेड रणजी ट्रॉफी फॉर हरियाणा, तो उन्होंने ही दिखाया रास्ता। और फिर शौक हो गया, शौक में बिलीव मतलब कि मज़ा आने लग गया क्रिकेट खेलने में। एंड जैसे दंगल की मूवी नहीं होती थी, सुबह उठ के भगाना, तो उन्होंने भी हमारे साथ यही करा हुँ, कि सुबह 5-6 बजे हमको घर से निकाल देते थे कि भाई जाओ दौड़ो, हुँ, प्रैक्टिस करो। एंड हमेशा उनका यही रहा था कि टीम को जिताओ। हुँ, शुरू से उनका यही रहा था। कहते हैं, अगर मेरे को अब तक याद है, प्लेइंग फॉर हिमाचल दिल्ली के अगेंस्ट ही फिरोजशाह कोटला में आई स्कोर्ड 100 बट वी लॉस्ट। हुँ, तो ही वाज नॉट हैप्पी। एंड उनको खुश करना बड़ा मुश्किल था कि भाई जीते नहीं तो फ़ायदा क्या, वो 100 भी वेस्ट है। तो आई ऑलवेज हैव प्लेड लाइक दैट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि यार 200 बनाने शुरू कर दिए, टीम को अच्छी पोजीशन पे शुरू कर दिया लाना। तो आई थिंक दैट ग्राइंड एंड नेवर गेट सेटिस्फाइड वाला, हुँ, आई थिंक आई गॉट फ्रॉम हिम ओनली। तो हाँ, और मम्मी से बात हो रही थी हुँ, कि फाइनल कब है, तो बताया तो मेरे को तो शुरू से ही पता था। हुँ, तो इट वाज़, हाँ, थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाते हैं, बट इट वाज़ 28 फ़ेब इन 2009 ही पास्ड अवे। हुँ, तो ये नहीं पता था कि 28 फ़ेब को ही ट्रॉफी मिलेगी। ट्रॉफी मिलेगी। सो आपकी मिक्स्ड मदर का क्या इमोशंस। रिएक्शन था? शी वाज़ वेरी हैप्पी, थोड़ा इमोशनल हुँ, ऑब्वियसली। एंड शी आल्सो कुडन्ट बिलीव कि यार ये चीज़ उस टाइम पे हुई। तो कोइंसिडेंस मान लो या ऊपर वाले ने लिखा होगा। तो हाँ, थोड़ा इमोशनल मोमेंट था, बट या मिस तो करते ही हैं, पर एन्जॉय किया जीतना। तो थोड़ा आपको लगता है कि अगर वो होते तो ये विक्ट्री और कंप्लीट लगती आपको? डेफ़िनिटली, व्हाई नॉट? हुँ। ही आई थिंक सबसे ज़्यादा खुश वही होते, ये जर्नी देख के। चलो, देखते हैं। ऑल्सो जब आपने हिमाचल के लिए खेला, पौंडीचेरी के लिए खेला और जम्मू कश्मीर के लिए खेला, हिमाचल एंड पौंडीचेरी के बाद व्हेन यू व्हेन मिथुन मन्हास आस्क्ड यू टू कम एंड लीड जम्मू कश्मीर, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? एक्सेप्ट द चैलेंज एंड लेट्स डू इट। हम्म, मेरे को ऐसा नहीं था कि इतनी अच्छी टीम होगी, टू बी ऑनेस्ट। हम्म, तो बट वी वेंट टू प्ले द बुच्ची बाबू। आई सेड यार ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है फर्स्ट ईयर। एंड देन वी स्टार्टेड प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, एंड और पहले साल ही इतना अच्छा करा, वी रीच द क्वार्टर फाइनल। सो आई हैड दैट बिलीव कि यार ये तो बहुत अच्छी टीम है, दे कैन विन द फाइनल्स। मेरे तो देयर वाज नो डाउट इन माय माइंड, क्योंकि मैं इतने साल क्रिकेट खेला, मैंने इतनी टीमें देखी 25 साल। बट इतने अच्छे लड़के इकट्ठे ग्रुप में होना, आई वाज लाइक ये तो जीत सकते हैं यार। इट वाज जस्ट अ बिलीव But टू गिव Paras, देम। the one thing I've noticed that in all the conversations we have had in the past, I think there has been one thing that has been constant, and that has been your belief in your team. हम्म। And on the other hand, you see so many critics dissing the Jammu Kashmir squad. What is that thing which nobody else is seeing and you saw? ते लड़के, इट वाज जस्ट टू अप्लाई, थोड़ा सा अप्लाई करना था। लड़के इतने अच्छे हैं, बस
उनको थोड़ा-सा ना बीच-बीच में आई थिंक बात करनी बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि यार अब क्या कर सकते हैं? आई हैव बीन ऑलवेज़ टॉकिंग टू एवरीवन। हमारा कोई जूनियर प्लेयर हो चाहे सीनियर प्लेयर हो। आई ऑलवेज़ टेक द सजेशन करनी आई हैव टू डू बट आई ऑलवेज़ आस्क देम कि यार इनका कैसे दिमाग चल रहा है? तो आई थिंक वो एक कलेक्टिव ये जो लड़के इकट्ठे हुए और इनकी जिनसे जब मैं बात करता था कि यार ये सिचुएशन है या क्या करना चाहिए तो एवरीवन हैड देयर ओन ओपिनियन एंड वेरी गुड ओपिनियन हम्म लाइक अ मैच्योर क्रिकेटर कि हाँ यार भैया हम ये कर सकते हैं, हम इस सिचुएशन में इसको यहाँ डाल सकते हैं या उसको स्ट्राइक पे नहीं ला सकते, उसको आउट करते हैं। तो आई थिंक वहाँ से मेरे को लगा कि यार इनका क्रिएटिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, दे हैव द स्किल लेवल एज वेल और मेहनती भी हैं। तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बैठा है इनका सबका कि आई थिंक दे हैव दैट कि और दे वर वेरी कूल एंड कंपोज्ड। अगर हम किसी बड़ी टीम के साथ भी खेल रहे हैं, अगर देयर इज सम बिग प्लेयर आल्सो, दे वर वेरी काम एंड So, कंपोज्ड। Akib, when he was bowling KL Rahul or Mayank Agarwal, he wasn't intimidated at all. नो Did you? नथिंग, नथिंग, वेरी कूल एंड काम। Hmm. और ऐसा नहीं है कि बिकॉज़ ही प्लेड दिलीप ट्रॉफी आल्सो, उससे पहले बॉम्बे को जैसे मैं बता रहा हूँ Hmm. आपको इतनी बड़ी साइड थी एंड फ्यू मोर टीम्स वी हैव, तो सब समझ गए थे कि यार वी कैन बीट एनी साइड। Hmm. थोड़ा बीच में शोर भी मचा था कि यार बाहर आप उनके घर में खेल रहे हो कैसे हराओगे? तो मैंने कहा यार हम तो क्वार्टर फाइनल भी बाहर खेलते आए हैं, सेमीफाइनल भी बाहर खेलते आए हैं और फाइनल भी बाहर खेल रहे हैं। तो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट वी वांट टू डू। हमने वही चीज़ें सिंपल रखी और लड़कों में कॉन्फिडेंस इतना था, स्किल लेवल इतना अच्छा है एंड दे हैव दैट बिलीव कि यार हम कर देंगे आउट। इट वाज़ जस्ट टू पुट द रन्स ऑन द बोर्ड, Hmm. यही था हमारा एंड इतना अच्छा स्टार्ट मिला, तो उसके बाद तो फिर रनों की बात करें तो आपके खुद के कुछ कम रन नहीं है, 10,000 रन आपने क्रॉस करे, बिकम ओनली द सेकंड बैटर आफ्टर आफ्टर वसीम जाफर टू अचीव दैट फीट। काफी लोगों ने इस पे ये भी बोला कि अरे ही हैज प्लेड अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स एंड स्कोर्ड दोज मेनी रन्स। उस पे क्या आप जवाब देंगे? उस पे जवाब यही होगा जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहीं रन बनाऊँगा। जो मेरे को मंच मिलेगा आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। तो मेरे को जो मंच मिला आई हैव बीन ऑलवेज़ देयर। हम्म दिलीप ट्रॉफी में भी खेला, उस पे भी 71 की एवरेज है, इन फाइनल्स आई स्कोर्ड 170। तो जहाँ-जहाँ मेरे को मतलब कि मंच मिला व्हेरेवर आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट आई हैव जस्ट ट्राई टू बी देयर एंड गिव माय बेस्ट। तो इसमें मैं कुछ नो कमेंट्स, इसमें ये है कि आई हैव बीन जस्ट एन्जॉयिंग क्रिकेट और हमेशा वही दोबारा वही बात करूँगा कि जहाँ पे भी खेलूँ जिताने की कोशिश करी है। तो वही आई हैव आपके ऑलवेज़ फादर का जो हाँ, करेक्ट। ये सब कंपैरिज़न है ही नहीं कोई, मतलब कि आई नेवर कंपेयर माय सेल्फ विद समवन बट देयर इज़ कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को लाइफ में। आई हैव ऑलवेज़ गिवन माय बेस्ट, चाहे वो क्लब का मैच हो, चाहे वो रणजी ट्रॉफी, लीग का मैच हो या प्लेट का मैच हो या वो फाइनल हो, तो आई हैव ऑलवेज़ गिव माय बेस्ट। पारस, इतने ऐसी परफॉर्मेंस आपका स्ट्राइक रेट चाहे दिलीप ट्रॉफी में देख लें या इसमें देख लें, रणजी ट्रॉफी में देख लें, 10,000 रन आपने बना दिए हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद भी इंडिया का पार्ट ना होना, डू यू फील दैट यू हैव बीन ओवरलुक्ड? Uh, यार दीज थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड। शुरू से एक ये भी फंडा रहा है कि यार अपना काम करते जाओ, बाकी जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वो देगा। हम्म तो मेरा काम है ग्राउंड में जाके रन बनाना और टीम को जिताना। हम्म बाकी सिलेक्शन होना नहीं होना, दोज थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड। तो ऑब्वियसली रिग्रेट तो है ही कि यार कंट्री कौन नहीं खेलना चाहता, बट आई नेवर हैड अ रिग्रेट नाउ कि यार पहले थोड़ा बीच में फ्रस्ट्रेट होता था कि यार नहीं खेलना है खेलना है खेलना है, बट नाउ व्हेन यू गेट मैच्योर एंड यू नो द सिस्टम, बट आपके मेरे हाथ में यही था रन बनाना, तो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग और तभी 10,000 रन बन गए। और सबसे बड़ी बात है मेरे को मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। Is that the difference between 25-year-old Paras and 41-year-old Paras? That approach, that mindset? या आप ये बोल सकते हो, ऑब्वियसली मैच्योरिटी से बंदा सीखता ही है। Hmm. तो हाँ, अब नाउ आई हैव कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। पहले थोड़ा-सा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता था, Hmm. गुस्सा आता था कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रहा, बट नाउ आई हैव जस्ट गोइंग विद द फ्लो Hmm. कि यार कल मैच है, अच्छा करना है।
इंडिया का अगर अभी करंट टेस्ट स्क्वाड देखें तो कुछ बहुत ग्रेट नहीं टैलेंट आ पा रहा है टेस्ट स्क्वाड में। आपको क्या लगता है जितना भी आपने जम्मू कश्मीर के में खेला है उन प्लेयर्स के साथ खेला है, क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा टैलेंट है जो T20 नहीं पर टेस्ट इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में सटीक बैठेगा और क्यों? नहीं, आकिब नबी हैज़ बीन एक्सेप्शनल। ऐसा बॉलर मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने आई हैव प्लेड विद लॉट ऑफ क्रिकेटर्स। व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट? बिकॉज़ आपने ये बात 2-3 बार मुझे ही बोली हाँ। हुई है कि ही मतलब उसके जैसा बॉलर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। क्या हम्म। व्हाट मेक्स आकिब नबी स्टैंड आउट फ्रॉम द रिमेनिंग टैलेंट? एक- आपको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं बता देता हूँ कि व्हेन ही बोल्स, क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है जब हाथ से रिलीज होता है ना, यू कैन सी इट कि इट्स गोना गो आउट स्विंग और इन स्विंग, बट उसका हाथ से रिलीज इतना अच्छा होता है कि एंड पे ही जाके इट स्टार्ट मूविंग इन, हुँ, तो यू कांट सी इट फ्रॉम द हैंड कि इट विल गो आउट और इन। तो हुँ, ये टेक्निकल है, बट आई हैव बीन प्लेइंग इन द नेट्स आल्सो। हुँ, तो बहुत लेट मूव करता है विच इज लाइक क्लास, और आई थिंक he he have learned that thing, he have gone the next level now, so he knows it what to do, और उसको इतना कंट्रोल है कि I have never seen anyone having this much control in both the ways, in swing out इन swing. स्विंग, आउट स्विंग। एंड अपार्ट फ्रॉम आकिब? Sunil has been doing really well. UD has been doing really well. Sunil also, he have that class of in swing out हुँ, swing, and UD has been like quick one who has been always hitting the deck. He get the help from the wicket, तो विकेट से उसको हेल्प मिलती है। ऐसे अपना उमर नज़ीर है, हुँ, he has been really good, but unfortunately is not able to get a chance. उमरान मलिक है, so there are lot of still fast bowlers who are not able to get a chance, because अगर टीम अच्छा करती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, तो एवरीवन कांट प्ले, खेलने तो गहरे ही हैं। हुँ। तो आई थिंक जम्मू हैव लॉट ऑफ टैलेंट। जम्मू कश्मीर हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट। अगर फिटनेस की भी बात करें, आप मतलब आपके और आपके स्क्वाड में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लाइक यू आर 41 एंड ऑल ऑफ द स्क्वाड इज लाइक 25 26 मिड 20s आई वुड या से। पहली बात तो वो एज गैप, वो एज डिफरेंस, हाउ डिड यू मेक श्योर कि वो एज डिफरेंस गेम को इम्पैक्ट ना करे? एंड सेकंड, फिटनेस के लिए आपने कैसे पूरी स्क्वाड को कन्विंस किया कि स्किल्स के साथ साथ फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है? नहीं, फिट तो है ही वो पहले ऑलरेडी। मैं तो ऐसा कुछ उनको सिखाया नहीं फिटनेस के लिए, बट मेरे को ये हमेशा लगता है कि मैं उनकी जितना फिट रहूँ। सो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट, कि हाई ट्रेनिंग करता रहूँ। और अब क्या होता है कि संगति का फ़र्क पड़ता है। हम्म, इफ़ यू आर उनके साथ मैं खेल रहा हूँ, हम्म, तो फिर उनके जैसा स्किल लेवल भी, उनके जैसे मतलब कि सोच भी और फिटनेस लेवल भी रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई थिंक मेरे को उनके साथ खेलते हुए लगता ही नहीं है कि मैं इतना ओल्ड हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी यंग ही हूँ, और उनसे मैच करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप बोझ नहीं लगने चाहिए ग्राउंड में, दैट ओ नहीं यार इसके हाथ से रन हो जाएगा, ओ यार इसके पास बॉल गई तो चौका हो जाएगा। तो मेरा हमेशा ये होता है कि यार फील्डिंग अच्छी करता रहूँ, और वो सिर्फ फिटनेस से हो सकती है और कमिटमेंट से। So at 41, how do you make sure कि you match with these youngsters? What is the secret behind? Spill the tea. What do you eat? What is that specific diet do you follow? Or what is like your training schedule like? नहीं, सीक्रेट क्या है? कुछ तो होगा सीक्रेट। सीक्रेट डाइट तो है ही। कार्ब्स थोड़े कम, रात को थोड़ा डिनर में कार्ब्स थोड़े कम खाता हूँ, मीठा खाता नहीं हूँ। और बिल्कुल नहीं। बिल्कुल When नहीं was the वैसे। last time you had a sweet? नहीं, अभी घर आके खाई थी, जब कॉन्ग्रेचुलेशंस हम्म, करा तो खानी पड़ी। बट ये था कि बहुत ही कम, ना के बराबर ही ऑलमोस्ट, और सीजन के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं। हम्म, और दूसरा है कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज स्लीप अराउंड 9-9:30। मेरे को लगता है कि नींद से मेरी सबसे अच्छी रिकवरी होती है, और आई फील फ्रेश। और रेगुलर फिटनेस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आई हैव बीन ऑलवेज आई ऑलवेज गिव टाइम 15-20 मिनट्स, 20 मिनट्स और हाफ एन आवर एवरी डे अपनी फिटनेस पे, कि यार जिम कर लिया, या रनिंग कर ली, या स्ट्रेचिंग कर ली, या मसाज कर ली। तो एंड आई हैव बीन डूइंग इट कंसिस्टेंटली, तो काम कर रहा है अभी तक। तो आगे देखते हैं क्या होता है।
So, no carbs at night and no sweet at all. Yes. Diet के context में those are like हाँ, two reasons behind your yeah, और success. sleep And sleep, is yes. very important. And my second part of the question was that how did you make sure that वो age gap dressing room में ना impact करे, आपके equations में ना impact करे? नहीं, मैं आई हैव बीन वेरी फ्रेंडली, सबके साथ दोस्तों की तरह ही बात करता हूँ। हम्म और ऐसा नहीं है, क्रिकेट की भी, घर की भी, सारी इधर-उधर की बातें, दोस्तों यारों की सारी बातें करते हैं हम। साथ में खाना-पीना करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कुछ एज गैप का है इसमें। तो और हम क्रिकेट की भी बात करते रहते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी छोटे लड़के से बात कर रहा हूँ। और हम्म क्योंकि दे हैव बीन प्लेइंग सच अ गुड क्रिकेट, हम्म तो एवरीवन इज़ मैच्योर इन क्रिकेट एज़ वेल, तो किसी को ऐसे सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो मज़ा आ रहा है और सबकी कंपनी एन्जॉय कर रहे हैं, तो मेरे को लग नहीं रहा कि मैं इतना बड़ा हूँ इनके साथ रह के, टू बी रह ऑनेस्ट। के ऑल्सो हर रीजन ना या तो बैटर्स ज़्यादा देने के लिए जाना जाता है या फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स। जम्मू कश्मीर में आपको क्या लगता है कि किस किस चीज़ का हब हॉटस्पॉट बन सकता है? पावर हिटर्स और बॉलर्स, एंड इन बॉलर्स फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स। नहीं, ये ऑलराउंडर इतने अच्छे हैं सारे के सारे। मीन्स लाइक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, इफ यू सी यूडी कैन बैट, आकिब कैन बैट, सुनील कैन आल्सो बैट। तो हमारे जो आई थिंक मेन स्ट्रेंथ जो है कि हमारे जो नीचे वाले हैं, वी हैव अ डेप्थ इन द बैटिंग। या तो ये नीचे आके इतने रन बना देते हैं कि इफ यू कैन सी इन अगेंस्ट एमपी, लास्ट विकेट पे पार्टनरशिप या हुई 70-80 रन्स की, एंड वी वॉन बाय 65 रन्स। या So I think that's a very huge, difference, or you can say very good thing for our team कि यार नीचे जाके they can score इतने सारे runs। तो दे हैज बीन ऑलवेज, हमारी यही स्ट्रेंथ रही है हमेशा। ऊपर वाले तो करते ही हैं, पर नीचे वाले आके जो करते हैं ना, वो दूसरी टीम को ज़्यादा दुख पहुंचाता है कि यार अब आउट होने वाले थे, ये नीचे वाले भी रन बना गए। तो और दे हैव बीन कंसिस्टेंटली डूइंग इट। जब भी टीम कुछ ट्रबल में होती है, ये रन बना देते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छे ऑलराउंडर आ रहे हैं। और आई थिंक अभी T20 या वनडेज या जो भी, आजकल हर कोई ऑलराउंडर ही ढूंढता है कि यार कोई नीचे आके बैटिंग भी कर ले और बॉलिंग भी डाल दे। तो आई थिंक तो बेस्ट चीज़ होगी हमारी टीम के लिए। तो आपको लगता है जम्मू कश्मीर में ऑलराउंडर्स, इट कैन बिकम अ हॉटस्पॉट फॉर ऑलराउंडर्स? करेक्ट। और एवरीवन, कोई भी IPL हो गया या इंडिया टीम हो गया, हर कोई ऑलराउंडर ही ढूंढ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो 8.5 करोड़ में बिका है, तो अपनी बॉलिंग और बैटिंग की भी वजह से बिका है। राइट, आकिब, हाँ। हाँ, किम नबी। राइट। पारस, अगर आपकी फैमिली के बारे में बात करें, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनका कैसा रिएक्शन रहा कि मतलब मतलब मैं बार बार आपकी जर्नी को तो आई जस्ट से इट इट इज नॉट ओनली पोएटिक बट इट इज आल्सो द ट्रॉफीज सॉर्ट ऑफ आल्सो बिकेम लाइक अ रिडेम्पशन आर्क फॉर योर जर्नी। लाइक वही एक चीज मिसिंग थी, सब कुछ तो कर लिया आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का क्या रिएक्शन रहा उस पर? नहीं, दे गॉट इमोशनल। वो थोड़ा इमोशनल वैसे भी रहते हैं, मेरी तरह नहीं है। तो वो थोड़े इमोशनल भी हो गए। एंड वाइफ हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिंग मी। वो उसका तो बहुत बड़ा रोल है। और बच्चों को संभालना, मैं तो 6-6 महीने 7-7 महीने ट्रैवल करता हूँ। एंड कोई कंप्लेंट्स नहीं है। शी हैज़ ऑलवेज बीन अप टू द मार्क एंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी कि नहीं, जाओ खेलो, खुशी खुशी खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर देख लूँगी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें इट्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और कभी मेरे को ऐसी तकलीफ आने नहीं दी कि मेरे को घर के बारे में सोचना पड़े, बिकॉज शी हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। और मदर भी हैं, तो शी ऑल्सो गॉट इमोशनल। और वो वही होता है ना कि मैच चल रहा है तो सारा टाइम चैंटिंग करनी और ये करना। तो शी हैज़ बीन ऑलवेज अ बिग सपोर्ट एज वेल। तो सब खुश हैं, एवरीवन रियली एंजॉयड इट। तो घर वालों खुशी दे रहे हैं, उससे ऊपर क्या मैं कर सकता क्रिकेट के अलावा बात करें तो do you work here in Delhi apart from like when you're not playing cricket, what do you do? हूँ। या आई गॉट अ जॉब इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 2005। सो 20 साल हो गए जॉब करते हुए। क्या जॉब करते हैं आप, क्या काम करते हैं? जॉब काम काम तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बट सारे लीग के मैचेस खेलने पड़ते हैं, जैसे जो भी टूर्नामेंट FCI खेलती है,
तो सारे मैचेस खेलते हैं। अभी ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर जीत के आए हैं कैलकाटा में, तो 3 साल से विनर्स हैं, और लीग के भी विनर्स रहे हैं। बहुत सारे यहाँ जो टूर्नामेंट्स होते हैं, तो एफसीआई को रिप्रेजेंट करना पड़ता है एज अ क्रिकेटर। तो स्पोर्ट्स बेसिस पे जॉब लगी थी, तो बहुत सीनियर्स का हेल्प भी रहा है इसमें, क्योंकि उनकी वजह से ही खेल पाए हूँ। अगर वो ऑफिस बुलाते या मतलब कि काम करवाते तो मुश्किल हो जाता। तो उनकी सपोर्ट की बगैर ही मुमकिन नहीं था कि मैं क्रिकेट को इतना टाइम दे पाता। राइट। पारस, अब रणजी ट्रॉफी जीत लिया आपने, अभी चलता रहेगा सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, पता नहीं और क्या क्या। नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान अभी तो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। अभी तो खेलेंगे, ऑफिस के मैचेस शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आई नहीं, थिंक व्हाट्स नेक्स्ट फॉर जम्मू कश्मीर इन जम्मू टर्म्स ऑफ कश्मीर कैरी ऑन ही है अभी तो। लेट्स सी। बाकी तो अभी अब तो ईरानी ट्रॉफी भी है, तो इट विल बी अ बिग गेम, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी तो उसी के ही दिमाग में चल रहा है कि यार वो भी जीतेंगे तो और मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट ईयर रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर में ही रहने वाली है, नहीं जाने देंगे जम्मू कश्मीर से? पूरी कोशिश है नहीं पूरी जाने देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वेरी स्पीकिंग मच। टू अस।